To news that's just coming in from Sri Lanka. We are learning that the outgoing President Rajapaksa has fled to Mali, but what we understand is that Maldives is not Gotabaya Rajapaksa's final destination. He's in fact expected to reach his final destination perhaps later today. Sources also seem to indicate that once he reaches his final destination, Gotabaya Rajapaksa's resignation will be announced. Now, there has been a great deal of speculation as to whether Gotabaya Rajapaksa has already resigned, but that resignation, if it has happened, hasn't been made public yet. Earlier this morning, we were getting information as well as a press release that came in from the Defence Forces in Sri Lanka, which suggested that Gotabaya Rajapaksa cleared all protocols and thereafter an Air Force Antov jet actually proceeded to Mali in the Maldives. Now, from the Maldives, we are given to understand that he could be proceeding to Dubai. That is believed to be his final destination. We're going to try and get our correspondents to give us more information on this aspect of it. But what we know so far is that Gotabaya Rajapaksa, along with his wife and two bodyguards, earlier this morning arrived in Mali in the Maldives at about 3 o'clock local time. Now, the president, of course, has been in hiding after pictures of the crowd storming his presidential palace emerged last week. Sri Lanka has been going through the worst economic depression it has seen ever since through various decades rather. Now, this economic downturn, of course, is expected to get worse since there is really no government in place at the moment. We are given to understand that Ranil Wickremesinghe, who was the Prime Minister earlier, could be given the charge. According to the Sri Lankan constitution, he is supposed to take over as president once the resignation of the president is made public. Now, when that happens, we don't know yet, but developments that have taken place this morning seem to suggest that Gotabaya Rajapaksa may stick to the deadline that he had given to protesters, that he will resign on Wednesday, and that's today. He's already made his way to Malé in the Maldives and is expected to go further to perhaps Dubai. That's what we are learning from our sources. Now, we're also learning that the speaker is likely to announce his resignation soon. There is no timeline in place yet as to when that happens, but the constitution in Sri Lanka provides for the Prime Minister then to be sworn in as a caretaker president till elections can be held and a new president can be appointed. So do remember that Ranil Wickremesinghe also has resigned as the Prime Minister after there have been sustained protests that have taken place across Sri Lanka. Pictures that came in over the weekend seem to suggest that the anger among Sri Lankans has now brimmed over. We saw pictures of how people entered the presidential palace as well as the private residence of the Prime Minister. These are protesters who've been peacefully protesting for months on an end now. These protesters now seem to be headed back to the presidential palace. These pictures that we are getting to you from Sri Lanka. Now, we've been speaking to our correspondents on the ground who seem to suggest that people in Sri Lanka still don't believe as to whether Gotabaya Rajapaksa will finally hand in his resignation. Let's go across to Saloni. She's reporting from Colombo on this. Saloni, what has the reaction of people, citizens who've been protesting for so long been to the fact that the president has now fled the country? Do they believe that he will finally resign? ये सड़कों पर आप जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं, दरअसल ये प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की ओर ये भीड़ बढ़ रही है क्योंकि सुबह ही जानकारी मिल गई थी लोगों को कि महिंदा राजपक्षे और ये जिस तरह से गोटा राजपक्षे ने राज किया, उसके बाद गोटाबाया राजपक्षे फरार हो गए, ये जानकारी मिल गई थी लोगों को। लगातार ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, ये श्रीलंका के सड़कों का हाल है। श्रीलंका की सड़कों का हाल, जो प्रेसिडेंट हाउस पर जो भीड़ थी वो प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री आवास पहुंचने की, लेकिन देखिए लोगों की भीड़ ये बता रही है कि नाराजगी उनमें कितनी तेजी से बढ़ गई। हम कोशिश कर रहे हैं आपको वहां तक ले जाने की। रास्ता बंद हो गया, देखिए यहाँ पर रास्ता बंद हो गया है, हमें खुद से जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हम थोड़े वक्त बाद आपको वो सीधी तस्वीरें दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ रास्ता बंद हो चुका है, हमें पैदल यहाँ से जाना पड़ेगा। थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे लोगों के बीच चलते हुए, किस तरह का माहौल है, किस तरह के हालात है।
ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर रास्ते को रोक दिया गया था और कोशिश कर रहे हैं हम आपको दिखाएं कि क्या क्या हाल है। ये गाल रोड है श्रीलंका का, और लोगों की भीड़ दरअसल ये जो बढ़ रही है, ये प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ रही है, क्योंकि विक्रमसिंघे अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगे। लोगों में उनको लेकर भी नाराजगी है और सड़क खचाखच भरी हुई है। देखिए ये श्रीलंका का हाल है। श्रीलंका की जनता अब कहीं ना कहीं मांग रही है इंसाफ, सवाल पूछ रही है। जो राजपक्षे परिवार का राज रहा, इतना लंबा राज, जिसमें कहा गया कि चाइना से नजदीकियां बढ़ाने के साथ जो पैसे बनाए गए, जो कर्ज लिया गया, उनसे सिर्फ अपनी जेबें भरी गई हैं, और ये देखिए गाड़ियों में भरकर लोग झंडा श्रीलंका का लेके आगे बढ़ रहे हैं और सड़क पूरी तरह से लोगों से भरी हुई है। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये गाल रोड है श्रीलंका का। बड़ी बात ये है कि जो जिम्मेदार थे वो फरार हो चुके हैं, जिनके हाथ में देश की कमान थी वो फरार हो चुके हैं। लेकिन जो भी अब कमान संभालेगा, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जनता को ये साबित करने की कि कैसे यहाँ के हालात ठीक होंगे, क्योंकि आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं और स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अभी भी लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। पीछे देखेंगे आप, पूरी भीड़ नजर आ रही है और ये भीड़ बता रही है कि लोग रुकने वाले नहीं, क्योंकि जानकारी मिली। देखिए ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ से, हिंदी में भी लोग बोल रहे हैं, कह रहे गो गोटा होम, बार बार यहाँ पर कहा जा रहा है। नारेबाजी की आवाज आप तेजी से सुन सकते हैं। और ये श्रीलंका कई हालात एक दिन में नहीं हुए हैं, कई सालों तक इसे पूरी तरह से खत्म किया गया। आप देखिए पूरी तरह से सड़क भरी हुई है लोगों से, और आगे और पीछे हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जो दयनीय स्थिति है अभी श्रीलंका की, चाइना से जी तोड़ मदद ली राजपक्षे ने, उनकी नजदीकियां रही, लेकिन वो नजदीकियां सिर्फ जेबें भरने के लिए रही, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए रही, लोगों का विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश के आर्थिक हालात ठीक करने के लिए नहीं रही। लगातार अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी, देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये पूरी सड़क भरी हुई है लोगों से और नारेबाजी सिंगली भाषा में की जा रही है लोगों की तरफ से। देखिए इंग्लिश में बोल रहे हैं गो गोटा होम। लगातार ये बात कही जा रही है। जब से जानकारी मिली लोगों को, तब से और नाराजगी बढ़ गई कि मालदीव घूम रहे हैं, परिवार के साथ मालदीव चले गए हैं। 2 बॉडीगार्ड्स और परिवार के साथ मालदीव गए हैं और सड़क पर लोगों का हुजूम ये आप देख रहे हैं। हम इन्हीं लोगों के बीच आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभय लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, अभय हर तस्वीर हमारे साथ पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए सड़कों पर ये जो भारी भीड़ है, ये एक दिन का आक्रोश नहीं है, ये कई सालों का, दशकों का आक्रोश है। 2 दशक तक करीब राजपक्षे परिवार ने कानून को तोड़ा मरोड़ा, अपने हिसाब से किया और लगातार राज करते रहे। अगर हम इधर से टॉप एंगल से दिखा पाए, यहाँ पे दिखाइए जरा दर्शकों को कि कितनी लंबी कतार है ये लोगों की। अब कोशिश कर रहे हैं अब तक वो तस्वीर पहुंचाने की टॉप एंगल से, क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ पर। देखिए अब कोशिश लगातार कर रहे हैं और ये पूरी सड़क लोगों से भरी हुई है। नारेबाजी चल रही है। लोगों ने बैंड्स लगाए हुए हैं गो होम गोटा के। श्रीलंका में जो हालात है, जो दयनीय स्थिति है, जो खराब फैसले राजपक्षे परिवार ने लिए, क्योंकि देखिए जब उन्हें दोबारा गोटाबाया राजपक्षे जब आए कुर्सी पर, तो उन्होंने टैक्सेस में रियायत दे दी। फॉरेन एक्सचेंज जो था, उनका फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका था। वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाए। वो नहीं समझ पाए कि अभी जो हालात हैं उसमें टैक्सेस में रियायत की नहीं, जो कमी है उसे पूरा करने की जरूरत है। लेकिन ये समझ नहीं